Bismillahirrahmanirrahim, dear student. Assalamu alaikum warahmatullah. I am Rab Nawaz Judoon. In the today lecture, we'll discuss the structures in C. So we have a general introduction. What is structure in C? So we can say sometime that it's an aggregates or structures. We can say it's a collection of related variables under one name. So structures may contain variables of many different data types in contrast to arrays that contains only elements of the same data type. But in structures, we have heterogeneous of the data types. We are dealing in structures. So structures are commonly used to define records to be stored in files. So pointers and structures facilitate the formation of more complex data structures such as linked lists and queues and stacks and trees that uh, you will study in the next semester in data structure course. The agenda of the today lecture is we will discuss why use structures and structure syntax क्या होता है and what is the difference between structures and arrays and how we declare the structures and how we access the elements of the structures and what is array of structures and what is the nested structures and how structure elements are passed to a function and what is structure pointers and in the early stage we'll see also discuss the type definition statement in C. So this is our today lecture agenda and we will discuss each concepts one by one. Structure in C basically there is a statement which mechanic is good enough who knows how to repair only one type of vehicle. Simple answer is none. ऐसा कोई मैकेनिक नहीं है जो एक ही टाइप की गाड़ी को ठीक कर सकता हो. एक मैकेनिक वो अच्छा मैकेनिक होता है जो मुख्तलिफ गाड़ियों को ठीक कर सकता है. Same thing is true about C language. It wouldn't have been so popular that it had been able to handle all ints. We all the time playing with the ints, or we all the time play with the floats, or all the characters at the same time. ऐसा नहीं होता. डेली लाइफ में हम लोग जब डेली लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, द सेम टाइम हमारा ताल्लुक करेक्टर के साथ ही पड़ता है, फ्लोट के साथ ही पड़ता है, इंटीजर के साथ ही पड़ता है, स्ट्रिंग के साथ ही पड़ता है. So in fact, when we handle real world data, so we need to have deal with all stuffs, including the ints and floats and characters and strings. Instead, we deal with entities that are a collection of things, each thing having its own attributes, just as entity. एंटिटी क्या होती है कि जिस चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा सके और जो चीज़ हमें आंख से नज़र आ रही है उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम रख सकते हैं. जैसे हम कहते हैं बुक हमारे पास एक एंटिटी है. सो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स द बुक हैज़ सच एज टाइटल एंड ऑथर एंड कॉल नंबर एंड publishers and number of pages and data publications and price, etc. As you can see, all this data is dissimilar. For example, author is a string and the number of pages is an integer and the publisher is also a string and the price is float. So for dealing with such collections, C provides a special data type called structure. So structure gathers together different atoms of information that comprise a given entity. In simple words, अगर हम इसको अभी तक जितनी डिस्कशन की उसको हम कंक्लूड करना चाहें आसान लफ्ज़ों में, तो structure is a group of variables of different data types represented by a single name. एक मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स की उनको हम ग्रुप कर देते हैं, उनको एक ही नाम रख देते हैं. ये एक नाम के अंडर हम लोग बहुत से डेटा आइटम्स को जब ग्रुप करते हैं तो वो स्ट्रक्चर कहते हैं. जैसे एरे में हम कहते हैं सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे, इंट नेम और 10 कर देते हैं हम लोग. इसका मतलब है कि हमारे पास इंटीजर टाइप के 10 एलिमेंट्स होंगे लेकिन उनका नाम सबका नेम ही होगा. तो यहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स होंगे. उसमें इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है.
उन सब को जो कंबाइन करके ना एक ही एंटिटी के अंदर रखेंगे तो उस एंटिटी का नाम सबके लिए सेम ही होगा, उसका नाम हम सेम रख सकते हैं। एंड दैट गिव्स अस द फैसिलिटी only by structures. We have seen earlier how ordinary variables can hold one piece of information, int a, one information, हम a के अंदर एक वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। int a का जो वेरिएबल है a, उसके अंदर a की वैल्यू रख सकते हैं इंटीजर टाइप की। एंड हाउ एरेज कैन होल्ड ए नंबर ऑफ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम डेटा टाइप। फिर हमने सोचा कि अगर a के अंदर हम सेम टाइप की मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहें तो फिर हमारे पास कोई हल नहीं था, हम एरे पढ़ा। तो आज हम देखते हैं कि हम एरे सबका नाम हम सेम ही था, तो हम कहते हैं इंट ए, तो हमने कहा ए इक्वल टू 5, तो 5 आ गया। उसके बाद हमने कहा इंट ए और सब आगे हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में 10 लिख दिया। इसके मतलब अब ए के अंदर जो है एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम 10 इंटीजर वैल्यू जो है हम स्टोर कर सकते हैं। आज हम ये सीखते हैं कि अगर हमारे पास नाम एक ही हो और उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें। सो ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स उनको हम कंबाइन कर सकें। तो ये वाली फैसिलिटी हमें सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू स्टोर डेटा अबाउट अ बुक, एंड इफ़ यू वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन, इफ़ यू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ कार, if you store information about a student, if you store information about a teacher, and if you want to store information about some bank or some patient, so you might want to store its name. If you talk about the book, so name of the book should be a string, its price should be a float, and number of pages would be an int. If data about say 3 such books is to be stored, then we can follow 2 approaches. अगर हम 3 बुक के मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन हमारे पास उस बुक का नाम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसके पेजेस क्या हैं, तो हम 2 तरीक़ों से ये काम कर सकते हैं। Construct individual arrays, one for storing names, another for storing price, and the last one is storing for number of pages of the books. So या हम यूज़ स्ट्रक्चर वेरिएबल, या तो हम 3 एरे से काम करें या हम लोग सिंपल एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना लें, उसकी मदद से कर लें। हम पहले तरीके से करते हैं एरेज को यूज़ करते हुए। 3 बुक्स हैं तो 3 बुक का नाम भी होगा और 3 बुक की प्राइसेस भी होंगी और 3 बुक की अपने भी पेजेस भी होंगे। सो वी डिक्लेयर 3 एरेज इन द मैन फंक्शंस। नेम जो हमारे पास वो हमारे पास कैरेक्टर में आ जाएगा, फ्लोट पर प्राइस और एंड पेजेस। हमने यहाँ पे enter name, price and number of pages of 3 books. Inside the loop we just scan the name and price and pages of the 3 books, and once this information is stored inside the array, and then we print the value stored inside the array by using the printf statements by iterating them from 0 to 2 in the last loop you can see over here. तो आप यहाँ से उनकी वैल्यू को देख सकते हैं। इस तरह की आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। The program becomes more difficult to handle as the number of items relating to the book go on increasing. अगर एक बुक के मतलब इंफॉर्मेशंस या उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ जाएंगे, जो ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे तो उतने एरेज रखने पड़ेंगे हमें, तो ये हमारे लिए बहुत टीडियस और मुश्किल हो जाएगा। For example, we would be required to use a number of arrays if we also decide to store name of the publisher or date of purchase of book और accession number हम डाल देते हैं वहाँ पे, और उसी कैटेगरी डाल देते हैं कि वो किस टाइप की बुक है, इस्लामिक बुक है, इंजीनियरिंग की बुक है, साइंस की बुक है, फिक्शन की है, किसकी है। तो जो हम उस बुक के मतलब इन्फॉर्मेशन मज़ीद स्टोर करना चाहेंगे तो अल्टीमेटली उसके एट्रीब्यूट जब बढ़ेंगे तो एट्रीब्यूट के बढ़ने से हमारे पास अगर एरे से डील कर रहे हैं तो हमारे पास it would be so tedious to handle such situations, to store the information about that book. To solve this problem, to solve these issues, so C language provides a spatial data type that's called structure. Structure हमें इस तरह की मुसीबत से बाहर लेके आ जाएगा। जनरल सिंटैक्स क्या होता है स्ट्रक्चर का कि हमारे पास स्ट्रक्ट जो है हमारे पास कीवर्ड, एंड देन वी हैव स्ट्रक्चर टैग। स्ट्रक्चर टैग मीन स्ट्रक्चर नेम जो आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम बुक रखना चाहते हैं तो स्ट्रक्ट बुक आ जाएगा, लेकिन इस एग्जांपल में हमारे पास गीक्स फॉर गीक्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर टैग है।
इसकी बॉडी में हम लोग इसकी आइटम्स लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कितने आइटम्स हैं, तो उसका नेम क्या है, उसकी आईडी क्या है, उसकी सैलरी क्या है, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स होंगे। और स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारे पास क्लोज हो रहा है तो उसको साथ सेमी कॉलन से लाजमी टर्मिनेट करना है। इसी चीज़ को अगर हम बुक्स पे कॉपी करना चाहें, जो पिछली स्लाइड पे हमने देखा था, जो हमने एग्जांपल कोड की थी, तो हमने बुक का एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ये आपने ऐसे ही लिखना है। और आगे जिसका भी आप जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं उसको आपने डिफ़ाइन करना है। बुक है तो बुक के मतलब क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है पॉसिबल, तो उसको उसकी आइटम्स जो है अपने स्ट्रक्चर एलिमेंट्स जो है उसके एंड साइड लिखने हैं। उसके बुक का नेम हो सकता है, प्राइस और पेजेस हो सकते हैं, तो उसकी टाइप अपने यहाँ मेंशन करनी है और यहाँ पे इसको क्लोज करके साथ सेमीकोलन लगा देना है। This statement defines a new data type called struct book. Each variable of this data type will consist of a character variable called name, a float variable called price, and an integer variable called pages. So these are the structure elements. So as far declaration of structure is concerned, once the new structure data type has been defined, one or more variables can be declared to be of that type. आप जब स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देंगे तो उस स्ट्रक्चर टाइप के आप उसकी इंस्टेंसेस कह सकते हैं उनको हम लोग, या हम स्ट्रक्चर वेरिएबल कह सकते हैं, वह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल द वेरिएबल b1 b2 b3 कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ द टाइप स्ट्रक्ट बुक एज स्ट्रक्ट बुक b1 b2 b3। तो स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारा क्लोज हुआ था और सेमी कॉलन के बाद आप नीचे आएंगे तो अब आपने जो टाइप बनाई है उस टाइप का आपने क्या करना है, वेरिएबल्स बनाने, तो इसको इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। सो दिस स्टेटमेंट सेट्स असाइड स्पेस एंड मेमोरी। तो हमने 3 वेरिएबल रखे हैं, पिछली स्लाइड पे आप देख सकते हैं। करैक्टर है, फ्लोट है और इंट है। करैक्टर 1 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट का और इंटीजर भी 4 बाइट का। और अगर हम डिफ से यूज़ कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास अगर अर्लियर कंपाइलर्स हैं तो उसमें हमारे पास इंट की वैल्यू 2 बाइट्स में होती थी। सो जब b1 करेंगे ना, तो b1 का मतलब है कि b1 की टाइप हमारे पास बुक है और बुक के अंदर हमने 3 आइटम्स डिक्लेयर किए हुए हैं। तो दिस b1 जब करेंगे ऑफ टाइप बुक, इसका मतलब है मेमोरी के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, इट मेक्स अवेलेबल सेट्स असाइड स्पेस एंड मेमोरी, दैट स्पेस होल्ड्स ऑल द एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर। एलिमेंट्स मीन के उस मेमोरी स्पेस में हमारे पास उसकी प्राइस भी आ जाएगी, उसका नेम भी आ जाएगा और उसकी पेजेस भी आ जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 7 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगी, 1 फॉर नेम दैट इज़ कैरेक्टर, 4 फॉर प्राइस एंड 2 फॉर पेजेस। और 2 फॉर पेजेस मीन इंटीजर है, अगर 4 यहाँ पे ले रहे हैं तो हमारे पास 9 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगी, फॉरवर्ड एडजेसेंट्स होंगी सारी की सारी मेमोरी के अंदर। वी कैन सी ओवर हियर स्ट्रक्ट बुक, और नीचे हमने यहाँ पे जब बुक यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया तो हमने इस बुक टाइप, ये डेटा टाइप बना दिया हमने, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है बुक, और उसकी हमने अब वेरिएबल बनाना है। जैसे हम कहते हैं इंट b1, तो हम यहाँ का नाम किएंगे हम बुक b1। ये बुक हमारे पास ये यूजर डिफाइंड है, ये आपने खुद डिफाइन किया है यहाँ पे। सो b1 जब करेंगे, b2 करेंगे, b3 करेंगे, तो मेमोरी में हमारे पास b1 का एक मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, b2 की मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, b3 की मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। b1 की जो मेमोरी रिजर्व होगी वो हमारे पास उसके अंदर ये आइटम्स आ जाएंगे सारे के सारे, b2 के भी सारे के सारे ये आइटम्स हैं और b3 की भी, क्योंकि इस बुक के जितने भी हम यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे उन सब की मेमोरी स्पेस इतनी रिजर्व होगी जो यहाँ पे हमने अंदर इसकी डाटा एलिमेंट्स को डिफाइन किया हुआ है। और अगर यहाँ पे आप इसकी डिफिनेशन के बाद फ़ौरन यहाँ पे वेरिएबल लिख देते हैं तो आपको स्ट्रक्ट बुक लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे पास ग्लोबल स्कोप में होंगे, आप इनको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। Like primary variables and arrays, structures variables can also be initialized where they are declared. अब उनको initialize भी कर सकते हैं, कोई initial value भी दे सकते हैं। The format used is quite similar to that used to initiate an array, जिस तरह हम array में करते थे। You can see over here. वही struct variable है जिसके अंदर हमने उसकी एक इंस्टेंस बुक का b1 बनाया और b2 बनाया, और b1 के अंदर हमने यहाँ पे नेम जो है एक स्ट्रिंग दे दिया बेसिक, और कामा प्राइस इसकी हमने 130 दे दी, और कामा पेजेस हमने 550 दे दी। तो इसका मतलब है कि इस बुक b1 के अंदर हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं इसको इनिशियली,
इनिशलाइज कर दिए वैल्यूज़, तो B2 के अंदर हमने ये वैल्यू दे दी है, तो मेमोरी में जाकर सेव हो जाएंगी। आप इसको इनिशलाइज भी किसी वैल्यू के साथ कर सकते हैं, और वही वैल्यू हो सकती हैं जो अपने यहाँ पे ऊपर से अपने स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के अंदर आपने जो आइटम्स अपने डेटा मेंबर्स उसके जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। तो स्ट्रक्चर कंटेन्स ए नंबर ऑफ डेटा टाइप्स ग्रुप टुगेदर, सो दीज डेटा टाइप्स मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम टाइप। ये हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, होमोजेनियस नहीं हो सकते, होमोजेनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। The following example illustrates the use of this data type. Program at slide 7 can be dealt efficiently using structure on the next slide. जो हमने array के साथ प्रोग्राम बनाया था कि उसको हम देखते हैं कि हमारे पास वो स्ट्रक्चर से कैसे काम करता है। तो यहाँ पे बुक की 3 इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमने 3 एरे बनाए थे लास्ट स्लाइड नंबर 7 पे। यहाँ पे हम इसको स्ट्रक्चर की मदद से करते हैं, तो ये कितना आसान हो जाएगा। हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया, और यहाँ ये जो डेटा टाइप हमने स्ट्रक्ट बुक बनाई है, स्ट्रक्ट बुक एक डेटा टाइप है, उसकी हमने 3 वेरिएबल बना लिए हैं, B1 B2 B3। अब B1 B2 B3 की जो टाइप है वो हमारे पास स्ट्रक्ट बुक है, ठीक है। तो जिस तरह हम कहते थे इंट B1 B2 B3 इन, तो यहाँ पे हम कहेंगे B1 B2 B3 की टाइप क्या है, स्ट्रक्ट बुक है, और इस बुक के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स क्या हैं, नेम प्राइस एंड पेजेस। इसका मतलब B1 B2 B3 सब के अंदर जो है नेम प्राइस और पेजेस हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटर नेम्स प्राइस एंड नंबर ऑफ 3 बुक्स हमने किया। तो यहाँ पे हमने स्कैन ऑफ करवा लिया B1 B2 B3 को, और जब इन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को जब हम इन वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करना है। तो कहेंगे B1 डॉट नेम, B1 डॉट प्राइस, B1 डॉट पेजेस। डॉट ऑपरेटर यूज़ होगा स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो इनकी यहाँ पे टाइप को देखते हुए आपने वही फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे लगानी है, और डेटा आपने स्कैन ऑफ करवा लिया। और जो आपने डेटा स्कैन कर लिया, इसका मतलब है स्ट्रक्चर की जो मेमोरी में बना था उसके अंदर आपने वैल्यू स्कैन करवा लिया, मेमोरी में डेटा उन एलिमेंट्स में चला गया B1 B2 और B3 के अगेंस्ट। अब उसी को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपल प्रिंट ऑफ लगा के आपने B1 डॉट नेम, B1 डॉट प्राइस, B1 डॉट पेज करेंगे तो वो डेटा आपको दोबारा मिल जाएगा। अभी तक जो हमने सीखा है उसको अगर रिवीजन करें तो द क्लोजिंग ब्रेस इन द स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। इट इज़ यहाँ पे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की जो क्लोजिंग ब्रेस होगी उसके साथ सेमीकोलन लाजमी लगाना है, बोलना नहीं है। It is important to understand that a structure type declaration does not tell the compiler to reserve any space in the memory. कि जब स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो ये मेमोरी में कुछ चीज़ रिजर्व नहीं करती। ऑल स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन डज इज इट डिफाइंस द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर, ये सिर्फ फॉर्म बनाता है। मेमोरी में रिजर्वेशन तब होगी जब उस स्ट्रक्चर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आप। तो जैसे हमने कहा था स्ट्रक्ट बुक B1, जब B1 करेंगे तो मेमोरी में तब हमारे पास जाके मेमोरी रिजर्वेशन होगी जो डेटा आइटम्स आपने स्ट्रक्चर डेफिनेशन में डिफाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंगली। यूजुअली स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द सोर्स कोड फाइल बिफोर एनी वेरिएबल्स और फंक्शंस आर डिफाइंड। इसको हम टॉप पे डिक्लेयर करते हैं ताकि, और बात कर जब हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स को हम हर जगह में एक्सेस हो, तो हम मैन की फंक्शंस से बाहर हम लोग जो हैं स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हो स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर देते हैं, और उसके वेरिएबल को भी वहीं डिफाइन कर देते हैं, फिर उनको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हर जगह एक्सेस होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड स्ट्रक्चर्स में क्या फ़र्क था। सो एरेज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा, एरे के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनकी टाइप सबकी सेम होगी। इंटीजर सारे के सारे, या सारे के सारे इंटीजर होंगे, या सारे के सारे फ्लोट होंगे, सारे के कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन स्ट्रक्चर के केस में ऐसा नहीं होता, हेट्रोजीनियस डेटा हमारे पास होता है। एरे डेटा आर एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स की मदद से हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, वाइल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर्स। एरे एलोकेट स्टैटिक मेमोरी, हम स्टू में बता देते हैं कि हाउ मच मेमोरी इज़ नीडेड, हम कंपाइल टाइम में बता देते हैं। बट इन स्ट्रक्चर्स एलोकेट डायनामिक मेमोरी, हम स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स को रन टाइम पे हम ग्रो करते रहते हैं। सो एरे एलिमेंट एक्सेस टेक्स लेस टाइम देन स्ट्रक्चर्स, कि हमें पहले से पता होता है और मेमोरी रिजर्व होती है और उनके आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। वाइल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स टेक्स मोर टाइम देन एरेज, और स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं वाइल एक्सेसिंग फ्रॉम द मेमोरी। टाइप डेफिनेशन स्टेटमेंट इन सी क्या होती है, एक न्यू सॉर्ट ऑफ थिंग। It is an advanced feature in C language which allows us to create an alias, alias means और या synonym भी कह सकते हैं, और न्यू नेम कह सकते हैं। मैं कहता हूँ जी कि अब्दुल्ला का
एलिस नेम क्या है, उसको जुदून कहते हैं। या दनियाल का एलिस क्या हो सकता है, दानी हो सकता है। सो सेम द केस ऑफ हियर। एग्जिस्टिंग टाइप जो होती है या यूज़र डिफाइंड टाइप जो होती है, उसका हम कोई एलिस रख लेते हैं, कोई नया नाम रख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है, टाइप डिफ कीवर्ड है, आगे डेटा टाइप लिखेंगे जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप होगी, और आगे न्यू डेटा टाइप लिख देंगे आप। और टाइप डिफ कीवर्ड है, और डेटा टाइप हमारे पास नेम ऑफ एग्जिस्टिंग टाइप और यूज़र डिफाइंड टाइप। और न्यू टाइप में हमारे पास एलियस होगा या न्यू नेम होगा जो आप देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी चीज़ की थोड़ी सी इलस्ट्रेशन है कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि टाइप डिफ गिव्स फ्रीडम टू द यूज़र बाय अलोइंग देम टू क्रिएट देयर ओन टाइप्स। And you can see over here right after the preprocessor we just write over here type diff int integer. int is existing type है, हमने कहा इसका नया नाम हम रख लिया integer। तो मैन के अंदर हमने आप int var equal to 100 नहीं करेंगे, हम कहते हैं integer var equal to 100। आप इसको अपनी मर्जी के साथ लिख सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी के लिए। Type diff is used to define new data type names to make a program more readable to the programmer। ये हम एग्जिस्टिंग वेरिएबल के साथ भी, और यूज़र डिफाइंड जो हमने बुक बनाया है, हम कहते हैं जो हमने स्ट्रक्ट बुक बनाया है, तो स्ट्रक्ट बुक जो है उसका हम कहते हैं टाइप डिफ स्ट्रक्ट बुक। जो हमने किया है उस स्ट्रक्ट बुक का हमने B1 बनाया है, उसको हम कह देते हैं आगे बुक कर देंगे, तो हमारे पास नया नाम उसका आ जाएगा। आगे स्लाइड्स पे इसकी डिटेल हमारे पास डिटेल में टाइप डेफिनेशन की आ रही है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिक्लेरेशंस लोकल एंड ग्लोबल स्कोप क्या होता है उसमें बताया गया थोड़ा सा कि हमारे पास एक कार का स्ट्रक्चर है जिसमें कार का इंजन की स्पेसिफिकेशन किए हैं, फ्यूल टाइप, फ्यूल टैंक, कैप किधर तक है, और सीटिंग कैप क्या है, और फ्लोट सिटी माइलेज कितनी है। तो ये हम तो कार का जो है हमने यहाँ पे C1 जो है हमारे एक वेरिएबल बनाया है जिसकी टाइप हमारे पास कार की है। मैंने पहले कहा था कि अगर आप इस सेमीकोलन की C1 को बाद में करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टक कार C1। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया C1, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ग्लोबल स्कोप में है। और ये इसी को अब जब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की डिफिनेशन क्लोज की और मैन से पहले, और मैन के अंदर जाके हमने स्टक कार C1 किया, तो ये हमारे पास लोकल स्कोप में आ जाएगा। ये मैन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो कार का स्ट्रक्चर बनाया है उसकी डेटा एलिमेंट्स यहाँ पे हैं सारे के सारे। स्ट्रक्चर की डिफिनेशन हमने क्लोज कर दी। मैन के अंदर जाके हमने C1 का एक वेरिएबल बनाया जिसकी टाइप हमारे पास स्ट्रक्ट कार है, ठीक है। तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं टाइप डेफिनेशन में, इसका मतलब है कि ये जो हमने C1 लिखा है इसकी टाइप हर बार हमें स्ट्रक्ट कार लिखनी पड़ेगी। जब कभी भी हम इस कार का कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रक्चर का कोई भी इंस्टेंस बनाएंगे, तो जब हम कभी भी इस डेटा टाइप क्या है स्ट्रक्ट कार, तो जब कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसके पीछे हमें स्ट्रक्ट कार लाजमी लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टाइप डेफिनेशन स्ट्रक्ट कार, आगे इसके एलिमेंट्स, और यहाँ पे हमने कहा ये हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है स्ट्रक्ट कार, इसको हमने रिप्लेस कर दिया कार के साथ। इससे पीछे हमने कहा था कि टाइप डिफ इंट, आगे हमने कहा था कैपिटल इंटीजर। हम कहते हैं कि इंट को हमने इंटीजर, अब इंट लिखे हम इंटीजर लिखेंगे, तो हम यहाँ पे अब ये कह सकते हैं आप कि टाइप डिफिनेशन का मतलब है कि स्टक कार के बजाय अब हम कार लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट मैन की तरफ स्टक कार C1 करेंगे, तो हर बार हमें स्टक कार लिखने के बजाय अब हम क्या करेंगे, कार C1 भी कर सकते हैं, जैसे यू कैन सी ओवर हियर। ये हमारे पास स्टक कार जो था ओल्ड टाइप थी, और यहाँ पे हमारे पास हमने क्या कर दिया टाइप डेफिनेशन में इसकी हमने न्यू टाइप कर दिया हमने। तो न्यू टाइप का मतलब ये है कि अब हमें स्टक कार हर बार लिखने के बजाय सिंपल आप कार लिख सकते हैं कि हमने ये स्टक कार को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, न्यू एलियस लिख दिया हमने इसका कार। तो यू कैन सी ओवर हियर, और ये हमारे पास क्या चीज़ है, कार बिकम्स ए न्यू डेटा टाइप। अब हम हर बार जो है स्टक कार लिखने की साथ ज़रूरत नहीं है। तो जब कभी भी आप स्ट्रक्चर बनाए तो आप बेशक टाइप डेफिनेशन करते हैं साथ टाइप डिफ करके, और नीचे आप जो है
जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, और आप यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं, सिंपल बुक कर दें। तो हम कहते हैं, पीछे हमने बुक लिखा था ना, तो हम कहते हैं स्ट्रक्ट बुक लिखा था और नीचे उसके एलिमेंट लिखे थे, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप डिफ स्ट्रक्ट बुक, और यहाँ पे आपने कार की जगह बुक लिख देना है। और जब कभी भी आपने इस स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल बनाना है तो आपने स्ट्रक्ट बुक नहीं लिखना, आप सिंपल आप लिखेंगे बुक B1, बुक B2, बुक B3, तो आपके पास ये आसान हो जाएगा। सो एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इन एरेज वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग ए सबस्क्रिप्ट, and structures uses a different notation or different schemes or different heuristic. They used a dot operator. मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पीछे एग्जाम्पल हमने देखा है. So to refer to pages of the structure defined in our sample program, we have to use b1 dot pages. Similarly, to refer to price, we would use b1 dot price. Note that before the dot, there must always be a structure variable, and after the dot, there must always be a structure element. स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट स्ट्रक्चर, जो भी आप उस वेरिएबल के ऊपर पीछे जो हमने स्ट्रक्चर में डिफाइन किए हुए हैं आइटम, उसमें से कोई आइटम हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टोर किस तरह होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बुक का वही एग्जांपल कोड की, स्ट्रक्ट बुक B1। अगर आप यहाँ पे टाइप डिफ करते, टाइप डिफ स्ट्रक्ट बुक, तो यहाँ पे इस सेमी कॉलम से पहले बुक लिखते थे, तो यहाँ हमें स्ट्रक्ट बुक लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ बुक B1 कर देते हम लोग, ठीक है, स्ट्रक्ट खत्म हो जाता हमारे साथ। बहरहाल हमने करेक्टर में B और 130 और ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है हमसे कि ये 1 2 3 4 जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया है। सॉरी, एक्स्ट्रा नहीं है, आपको समझाने के लिए किया मैंने कि हमने 4 आइटम्स यहाँ पे दे दिए हैं। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो एड्रेस ऑफ नेम, जब इसका स्ट्रक्चर का जब B1 करेंगे ना, तो मेमोरी में हमारे पास एक एडजेसेंट लोकेशन पे ये तीनों आइटम्स आ जाएंगे। पहले नेम आएगा, फिर प्राइस आएगी, फिर पेजेस आएगा। तो अगर हम इनका अगर एड्रेसेस फाइंड करना चाहते हैं, तो आप वो एरे की तरह ही हमारे पास मेमोरी में एडजेसेंट लोकेशंस होंगी, तो उस हिसाब से फिर हम इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। सो B1 डॉट नेम, नेम का हम एड्रेस फाइंड, B1 डॉट प्राइस और B1 डॉट पेजेस, इसके एड्रेसेस फाइंड हो रहे हैं, हम एड्रेस फाइंड कर रहे हैं कि मेमोरी में इसका एड्रेस कहाँ से ये वैल्यू स्टोर होगी। तो पहला करेक्टर है और दूसरा हमारे पास प्राइस, हमारे पास फ्लोट है, तो ये 4 बाइट का आ जाएगा, और इंटीजर हमारे पास 2 बाइट का आएगा, और डिव सी में 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। ये इनके एड्रेसेस आ जाएंगे। 16 से 17 तक 1 बाइट आ जाएगी, 17 से 21 तक हमारे पास 4 बाइट्स आ जाएंगी, और 21 से ऑनवर्ड हमारे पास 2 बाइटें हैं, हमारे पास 4 बाइट है इंटीजर की आ जाएंगी। यह मेमोरी में स्ट्रक्चर बनेगा। ये मेमोरी में एडजस्टमेंट चीज़ें आ जाएंगी, B 130 और 550, ये मिस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे किसी वेरिएबल के अगेंस्ट की वो हम स्टोर ही नहीं कर रहे, तो ये वैसे ही निकल जाएगा। तो 16 से 17 तक एक वैल्यू आ जाएगी, 17 से ऑनवर्ड हमारे पास 21 तक जो फ्लोट है वो 4 बाइट लेता है, और ऑनवर्ड हमारे पास इंटीजर अगर डेव सी में तो 4 बाइट ले लेगा। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास बुक की एग्जांपल है लाइब्रेरी के अंदर, तो हम कहते हैं अगर बुक हमारे पास जो है 3 बुक्स नहीं है, हमारे पास 1000 बुक्स हैं, तो क्या हम 1000 वेरिएबल बनाएंगे ऑफ टाइप बुक के? तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि अब हम कहते हैं जी कि वही बुक वाली एग्जांपल है, स्ट्रक्ट बुक B3, हमने अब B जो वेरिएबल बनाया उसके 3 एलिमेंट डाल दिए। अगर आपको 3 चाहिए तो 3 बना सकते हैं, और यहाँ पे अगर 300 चाहिए तो 300 लिख लें आप, कोई इशू नहीं है, तो ये ईजी हो जाएगा। तो आप एरे की मदद से आप स्ट्रक्चर को हैंडल कर सकते हैं। लूप चलाइए आपने, उसी तरह आपने डेटा गेट किया। यहाँ पे मैंने एफ फ्लश एसटीएन किया हुआ है कि जब आप बार बार डेटा गेट करेंगे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स के ऊपर, तो डिव सी के अंदर आपके पास जो है वो बफर की वैल्यू जो होती है वो राइट कर जाती है, और नेक्स्ट टाइम आपके पास जो वैल्यू सेव करते हैं और पिछली वैल्यू जो और रिट्रीव नहीं होती, तो एक वैल्यू के बाद ही आपको कोई गार्बेज वैल्यू शो करना शुरू कर देता है वो। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि आप तीनों बुक्स के बारे में सेम इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की और प्रॉपर सेव हो जाए, जाके बफर से होती हुई आपकी मेमोरी में चली जाए, तो उसके लिए हर बार बफर की वैल्यू को क्लियर करेगा ये वाला फंक्शन। तो स्कैन ऑफ करेंगे एड्रेस ऑफ BFI डॉट नेम, BFI डॉट मीन B ऑफ 0 डॉट नेम, B ऑफ 0 डॉट प्राइस, B ऑफ 0 डॉट पेजेस,
फिर आप BF1, BF2, BF3 इन सब के ऊपर आपने ये अपने डेटा स्टोर करवा लिया, फिर आपने उसी को आपने वहाँ से एक्सेस कर लिया। तो इसका मतलब है कि अगर आप स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स को की जो वेरिएबल्स बनाएंगे वो थाउजेंड्स में हैं और बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे पास एरे इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू हैंडल द सिचुएशन। की आउटपुट आपके सामने। एडिशनल फीचर्स क्या हैं जी कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स कैन बी असाइन टू अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं आप दूसरे स्ट्रक्चर की वो असाइन कर सकते हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए हमारे पास मैन के अंदर हमने एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय बनाया, एक एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसकी एज क्या है, सैलरी क्या है, और उसी एम्प्लॉय का हमने E1 का एक वेरिएबल बनाया, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया हमने संजय, उसकी एज 30 साल है और उसकी सैलरी 5500। नीचे हमने दो वेरिएबल और बनाए हैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इसी एम्प्लॉय के E2 और E3। तो हम कहते हैं जी कि पीस मील कॉपियाँ, कि अब हम कहते हैं जी कि अगर हमने इस स्ट्रक्चर को E1 है, इसको हमने पूरे के एलिमेंट को कॉपी करके E2 में डालना है, तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर लें, हम पीछे हम पढ़ चुके हैं कि संजय है, इसको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि E1 डॉट नेम हमारे पास सोर्स स्ट्रिंग है, इसको कॉपी कर लेंगे आप किसके अंदर, E2 डॉट नेम के अंदर, क्योंकि E2 और E3 की भी हमारे पास डेटा आइटम्स यही होंगे। और E1 डॉट एज, E1 डॉट की जो एज है 30, इसको कॉपी साइन कर दिया आपने किसको, E2 डॉट एज। E2 डॉट एज के अंदर पहले कुछ नहीं था, तो अब ये नई वैल्यू E2 डॉट एज भी हमारे पास सेम वैल्यू E1 की आ गई। इस तरह आप E1 डॉट सैलरी इक्वल टू E2 डॉट सैलरी में चला जाएगा। E1 डॉट सैलरी को आपने साइन कर दिया E2 डॉट सैलरी में। और अगर आप एक ही गो में सारा कुछ कॉपी करना चाहते हैं कि E2, अब E2 के अंदर सारा डेटा चला गया, E1 वाला, E1 को सारी चीज़ों को हमने कॉपी कर दिया E2 के अंदर। अब हम चाहते हैं जी E2 की जितनी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं वो सेम यही हैं, इनको हम कॉपी करते हैं E3 के अंदर। तो आप सिंपल कर दें E3 इक्वल टू E2, तो E2 का सारा डेटा सिंपली आप एक ही गो में ये स्टेटमेंट देंगे तो वो सारे के सारे आइटम ऑटोमेटिकली E3 में कॉपी हो जाएंगे। तो नीचे आप प्रिंट एफ कर लें E1 डॉट नेम, E1 डॉट पेज, E1 डॉट सैलरी, तो ये हो जाएगी। इसको हमने इस जगह पे E2 में कॉपी किया था, सेम वैल्यू यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएंगी, और सेम वैल्यू जो है वो E3 में पड़ी हुई है वो भी हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। यू कैन सी ओवर हियर द सेम वैल्यूज आर देयर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है कि हमने स्ट्रक्ट एक एड्रेस का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमारे पास फ़ोन नंबर है और सिटी है और पेन नंबर है, और स्ट्रक्ट एम्प्लॉय है, एक दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया एम्प्लॉय का, उसका नेम है। और यहाँ पे आप देखें कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के अंदर हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस रखा है स्ट्रक्ट एड्रेस ए, ये स्ट्रक्ट एड्रेस टाइप है ना, उसका हमने एक वेरिएबल रख लिया। इसका मतलब है ए के अंदर अब, सो दिस ए इज़ द डाटा मेंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो अब इस ए के अंदर क्या है, ये तीन आइटम्स भी पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय है नेम के साथ साथ हमारे पास ऊपर वाली सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे इनहेरिट कर ली हैं। तो अब हम स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का हम ई करेंगे, एक वैल्यू बनाया इसकी टाइप हमारे पास पीछे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय है, इक्वल टू नेम में जदून डाल दिया, और यहाँ पे देखिए अब ए है ना हमारे पास, तो इसका मतलब है कि इस ए के पीछे ए के अंदर तीन चीज़ें हैं, एड्रेस है ना स्ट्रक्ट एड्रेस, तो स्ट्रक्ट एड्रेस की कितने आइटम्स हैं, 3, तो इसकी टाइप हमने ए रखी है, तो इसका मतलब है ए होल्ड्स दिस इंफॉर्मेशन, दिस डेटा मेंबर्स। तो अब ये ए तो एम्प्लॉय का हिस्सा है, तो हम एम्प्लॉय के अंदर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशलाइज कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर हम उसका 531046 दे देंगे, और सिटी के अंदर हम हरीपुर दे देंगे, हमारे पास वो स्ट्रिंग है, और पेन के अंदर हम 10 दे देंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे इसको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। नेम को तो हम %, फ़ोन नंबर को %। अब देखें नेम को हम ई डॉट नेम कर लेंगे, क्योंकि ई डॉट नेम करेंगे तो ई से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ई है इसकी टाइप हमारे पास स्ट्रक्ट एम्प्लॉय है, और ई का जो डेटा मेंबर है हमारे पास नेम है, तो ई डॉट नेम डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। अगर आप फ़ोन को एक्सेस करना चाहते हैं एम्प्लॉय के थ्रू, तो आप करेंगे ई डॉट ए डॉट फ़ोन नंबर, ए डॉट फ़ोन नंबर इससे एक्सेस होगा। तो इस तरह सिटी को हम करेंगे और पेन को करेंगे, तो ई डॉट ए डॉट सिटी और ई डॉट ए डॉट पेन, तो इससे हमारे पास ये नेस्टेड स्ट्रक्चर का हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। सो लाइक एन ऑर्डिनरी वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन आल्सो बी पास टू ए फंक्शन। हम जिस तरह हम ऑर्डिनरी वेरिएबल्स को या एरेज को या स्ट्रिंग्स को पास करते रहे हैं, तो हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल जो होता है उसको भी हम लोग फंक्शन को पास कर सकते हैं।
वही बुक की एग्जांपल हमने यहाँ पे कोड की है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि 3 आइटम्स ही हमारे पास, नेम, आथर और कॉल नंबर। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बाद हमने एक B1 जो है उसकी इंस्टेंस रखी है, उसकी टाइप B1 एक वेरिएबल है स्ट्रक्चर, उसकी टाइप जो है वो हमारे पास स्ट्रक्ट बुक है। यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, डिस्प्ले का फंक्शन बनाया। डिस्प्ले के फंक्शन में हमने इस B1 डॉट नेम, B1 डॉट आथर, B1 डॉट कॉल नंबर हमने भेज दिया। तो जब आगे डिस्प्ले के फंक्शन में जाएंगे तो B1 डॉट नेम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक एरे है। तो एरे का स्टार्टिंग एड्रेस हमने भेजा, ऊपर से B1 डॉट नेम करेंगे तो इसका मतलब है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे जाएगा, तो नीचे हमने पॉइंटर चाहिए टू गेट द एड्रेस ऑफ दैट एरे। सेम द केस इन द आथर, वो हमने वो भी हमने उसमें पॉइंटर में गेट कर लिया। और कॉल नंबर में इंटीजर तो सिंपल हम इंटीजर वैल्यू में गेट कर लेंगे। और नीचे हमने परसेंटेज किया, हम सिंपली हम जो है हम करेक्टर बाय करेक्टर भी उसको ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हर बार एड्रेस को इंक्रीमेंट करते रहे और यहाँ पे उसकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रिंट एफ के अंदर जो है सिंपल एस टी और एन को पास कर दिया, और नीचे हमने एन की जगह पर डी किया, और परसेंटेज एस टी में आएगा तो ऊपर जो वैल्यू ऊपर से नीचे आई है वो हमने प्रिंट करवा लिया। We are passing the base address of the array, name and author, but the value stored in call number. Thus, this is a mixed call, a call by reference as well as call by value. क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस भी भेज रहे हैं और वैल्यू भेज रहे हैं, तो ये मिक्स कॉल है जिसमें अंदर कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस दोनों आ गए। पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स टू फंक्शंस, हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को जो है ना उसको भेजते हैं फंक्शन को, जैसे B1 है या B2 उसको हम पास करते हैं। तो यहाँ पे देखें वही बुक है हमारे पास, मैन से पहले हमने इसको थोड़ा इनिशियलाइज कर दिया हमने, ये आप कर सकते हैं। और मैन के अंदर हमने इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल B1 बनाया, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। डिस्प्ले के फंक्शन को के अंदर हमने इस B1 को जो वेरिएबल था उसको हमने पास, जैसे हम कहते थे इंट A इक्वल टू 3, तो A को हम पास करते थे। तो यहाँ समझिए कि स्ट्रक्ट ये हमारे पास डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट बुक जो है B1 उसका वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हमने यहाँ पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि B1 जब जाएगा तो उसके साथ ये सारा डेटा नीचे चला जाएगा। तो नीचे आपने जब B1 भेजा, ऊपर स्ट्रक्चर एलिमेंट आएगा, तो नीचे भी हमें स्ट्रक्चर एलिमेंट चाहिए ना, तो उसी टाइप का। ये नहीं आप स्ट्रक्चर ऊपर से हम इंट भेजते हैं तो नीचे इंट होता है, ऊपर से एरे आता है तो नीचे एरे होता है, ऊपर से फ्लोट भेजते हैं तो नीचे फंक्शन डिफिनेशन फ्लोट ही होता है। तो हाँ उसी टाइप का होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमारे पास टाइप सेम होगी। तो अब ऊपर से B1 नीचे आया, उसकी टाइप हमारे पास स्ट्रक्ट बुक है, तो नीचे भी हमारे पास उसकी टाइप स्ट्रक्ट बुक ही होगी। नीचे आप वेरिएबल का नाम सेम B1 भी रख सकते हैं, कोई और नाम भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने जब इसमें गेट किया तो नीचे आपने इसकी टाइप को देखते हुए आपने डॉट ऑपरेटर की मदद से इन डेटा आइटम्स को आप एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। सो एज द डेटा टाइप struct book is not known to the function display, ये struct book जो है ये डिस्प्ले फंक्शन को नोन नहीं है, so therefore it becomes necessary to define the structure type struct book outside main। आपने क्या करना है फिर, अगर यहाँ पे struct book लिखेंगे, अगर इसको हम struct book को मैन के अंदर लिखते थे तो पीछे इसका मतलब ये है कि ये जो इसका स्कोप जो है स्ट्रक्ट बुक का ये मैन के अंदर तक ही रहता, इसको बाहर एक्सेस ना कर पाते हम लोग। इसको एक्सेस करने के लिए हमने फिर मैन से बाहर लिखा तो ये ग्लोबल, इसका स्कोप ग्लोबल हो गया, तो हम इसको सो दैट बिकम्स नॉन टू ऑल द फंक्शन द प्रोग्राम, जितने भी फंक्शन आप लिखेंगे तो उसके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। स्ट्रक्चर पॉइंटर्स भी हम कर सकते हैं, तो जिस तरह हम पहले पॉइंटर्स को देखा कि पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, इस तरह हम क्या था कि एरे ऑफ पॉइंटर्स एरे को देखा हमने, एरे पॉइंटर्स को भी देखा। आज हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर पॉइंटर्स हमारे पास क्या होते हैं, कि हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को पॉइंटर किस तरह बनाते हैं। एक पॉइंटर जो है किस तरह होल्ड करता है एक स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को के एड्रेस को। सो द वे वी कैन हैव ए पॉइंटर पॉइंटिंग टू एन इंटीजर और पॉइंटर पॉइंटिंग टू एन कैरेक्टर, सिमिलरली वी कैन हैव ए पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए स्ट्रक्ट वेरिएबल। Such pointers are known as structure pointers। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही बुक एग्जांपल है, मैन के अंदर हमने डिफिनेशन दी। B1 जो है हमने एक वेरिएबल बनाया ऑफ टाइप स्ट्रक्ट बुक, उसके अंदर हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया इन वेरिएबल्स के ऊपर, इन डेटा टाइप के ऊपर। नीचे हमने स्ट्रक्ट बुक का की टाइप का एक पॉइंटर बनाया स्टार PTR। सो नाउ PTR इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप स्ट्रक्ट बुक। सो हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कह दिया है कि PTR इक्वल टू एड्रेस ऑफ B1। सो PTR इज पॉइंटिंग टू B1। B1 इज आल्सो वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्ट बुक। तो यहाँ पे आपने क्या क्या किया
कि अगर B1 को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो B1 डॉट नेम, B1 डॉट ऑथर, B1 डॉट कॉल नंबर, तो आप इसको एक्सेस करके डॉट ऑपरेटर में कर सकते हैं। लेकिन आप पॉइंटर की मदद से स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, आपने हाइफन और आगे जो तीर का निशान होता है जिसको हम स्टीम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं वो लगा देना है, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। तो आप PTR दिस नेम करेंगे, PTR ऑथर, PTR कॉल नंबर। तो जब कभी भी आप स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को थ्रू पॉइंटर एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस नहीं करेंगे आप, पॉइंटर जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपने एरो सिंबल यूज़ करनी है, जिसकी एरो की जो नोटेशन है हमारे पास वो हाइफन और ग्रेटर का सिंबल यूज़ होता है। So the first printf is as usual. The second printf is however is peculiar, special. We can't use ptr.name or ptr.call number because ptr is not a structure variable but a pointer to a structure, and the dot operator requires the structure variable on its left. In such cases, C provides a special operator, that is, you can see over here, hyphen and greater symbol, called an arrow operator to refer to the structure elements. Okay, if you want to refer to the structure elements using pointers, so you must have to use this operators. यहाँ पे डॉट यूज़ नहीं करना। मेमोरी प्रेजेंटेशन किस तरह होगी? द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एंड पॉइंटर to structure in memory is shown in the figure below. So we have a pointer variable, PTR हमने जो बनाया था of type struct book, उसका अपना एड्रेस हमारे पास 65524 था और इसके अंदर हमने B1 का स्टार्टिंग एड्रेस सेव कर दिया था। तो दिस 65472 इज़ दी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द B1 कि हमारे पास जो B1 के अंदर जो मेमोरी रिजर्वेशन हुई है सारी की सारी जो लोकेशन होगी एडजस्टेंट होगी एज पर द डेटा आइटम्स डिफाइंड इन द स्ट्रक्चर डेफिनेशन। तो दिस मीन दिस पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द starting address of the B1, so this points to B1. Can we not pass the address of a structure variable to a function? कॉल बाय रेफरेंस की मदद से हम कर सकते हैं। क्या हम किसी भी स्ट्रक्चर का एड्रेस पास कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, वी कैन सी ओवर हियर। वही बुक का एग्जांपल है हमारे पास, मैन के अंदर हमने वही B1 किया और यहाँ पे हमने B1 नहीं भेजा जो पिछली स्लाइड पे देखा वो कॉल बाय वैल्यू था, सॉरी कॉल बाय वैल्यू था, वो हम सिंपल B1 को पीछे हमने पास किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसका एड्रेस भेज देते हैं। यहाँ पे जब एड्रेस भेजेंगे तो जब हम B1 का एड्रेस भेज रहे हैं इसका मतलब ये है हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं। तब कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो सेम B1 की जो टाइप है उसी टाइप का हमने नीचे पॉइंटर बनाना है, क्योंकि हमने उस पॉइंटर में इसका स्टार्टिंग एड्रेस गेट कर लेना है। जब स्टार्टिंग एड्रेस गेट करेंगे तो उन्हीं जो B1 की हमारे पास डेटा आइटम्स थे जो हमने स्ट्रक्ट बुक के अंदर डिफाइन किए हुए थे, उन डेटा आइटम्स के ऊपर हमने अब पॉइंटर जो B है उसके ऊपर हमने डॉट नहीं लगाना, बी एरो नेम, बी एरो ऑथर, बी एरो कॉल नंबर करेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर के एलिमेंट को थ्रू पॉइंटर हमने एक्सेस कर लिया है। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, स्ट्रक्चर के बारे में हमारी डिस्कशन थी कि स्ट्रक्चर इज़ यूजुअली यूज्ड व्हेन वी विश टू स्टोर डिसिमिलर डेटा टुगेदर। अगर हम हेट्रोजीनियस टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम सेव करना चाहते हैं तो वी विल प्ले विद द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कैन बी असेस्ड थ्रू ए स्ट्रक्चर वेरिएबल यूजिंग ए डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर की मदद से हम एक्सेस करते हैं। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कैन बी असेस्ड थ्रू ए पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर यूजिंग द एरो सिंबल्स, एरो ऑपरेटर्स। All elements of one structure variable can be assigned to another structure variable using the assignment operator। पीछे हमने एग्जांपल इसकी देख चुके हैं। It is possible to pass a structure variable to a function either by a value or by a address, either by a reference। तो call by value और call by reference structure value को हम कर सकते हैं, दोनों की एग्जांपल हम देख चुके हैं। It is possible to create an array of structures, और हम array of structures भी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने विद एग्जांपल्स अपने आज के लेक्चर में देख लिए हैं और इन तमाम चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। अगर इनकी सबको कहीं भी समझ नहीं आई तो आप लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल हैप्पी टू आंसर यू। ओके, इन तमाम प्रोग्राम्स की जो आज बनाए हमने इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है डेव सी कंपाइलर्स के अंदर या किसी भी और कंपाइलर के अंदर जो आपके पास मौजूद है। इससे मिले जुले सारे प्रोग्राम बनाने हैं और आप डेली लाइफ में, डेली वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में हमारे पास बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को आप लेके
उनके स्ट्रक्चर्स को बना के उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।